Hello to all my lovely students. I'm here again to share one more video on my YouTube channel, Maths Can Be Fun. So, how much is fun for you means you are something learning from my side or not. So, if you are gaining something, so you must to reply me or on my YouTube channel, or you can message me on my Facebook messengers and WhatsApp me or text me on my mobile number 9919333200. So I'm going to start today's topic, square and square root, because most of the students requesting to teach square and square roots, quadratic equation and trigonometry. So this time I'm going to start square and square roots, and later I will make the videos on remaining two chapters. Okay, so let's start the topic without wasting time. Look on a board. So, topic is square and square root. Square and square roots. Squares and square roots. Okay. In this video, I will teach only this square. Okay. I will make another video on the topic square roots and Pythagorean triplet also. So, what is a square? So, if a number multiply with the number itself, means the product obtained by number with number itself is known as the square of that number. Means, what is the square? The product obtained by number with number itself is known as square. Okay. For example, let the number be A. So this time I am letting number A. So if A is the number, so how to find the square of A? So square of A. So the square of A is equal to number A multiplied by number itself. Means again A, means A multiplied by A. So we get A square. Okay, we'll learn about this, how to multiply two variables in algebra. So A square is the square of A. It's clear? Now this is known as the exponential form. Exponent and parts, it's also means this chapter is also learned by you, because in its 7th standard. Okay, now so this is known as exponential form. So this is 2, which is known as power, index or exponent, whereas A is known as the base of the exponential form. So similarly, we can follow some natural numbers to find the square. So now I'm going to find the square of 3. So how to find the square of 3? Means, or sometimes we can say that to find the square of any number, we raised it power 2. Means कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसकी पावर को 2 कर देते हैं. Means through square. Square means 3 multiplied by 3. So 3 3s are 9. So we can say that what? 9 is the square of 3, as well as 3's square is 9. Similarly, 4 square is 4 into 4 is equals to 4 4s are 16. So 16 is the square of 4 or 4's square is 16. Vice versa. Means जैसा आपको पसंद हो आप वैसा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बट आपको चीज ध्यान रखनी है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 4 का स्क्वायर है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड अगर आपको
बड़े से बड़ा नंबर किसी का नंबर का भी अगर आपको स्क्वायर निकालना है, if you want to find the square of 19, so 19 multiplied by 19 is equals to 361. 19 square is 361. So if you are, अगर आपको लर्न है तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट अप टू 20 इट इज मस्ट टू लर्न, इट इज मस्ट टू लर्न. ओके, मीन्स वो जरूरी है कि अप टू 20 तक तो आपको लर्न होने चाहिए. बाकी उसके बाद की अगर रिक्वायरमेंट्स अगर हमें जैसे होती है, हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. वी हैव सम ट्रिक्स आल्सो, सो आई विल शेयर द ट्रिक्स, डोंट वरी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर टू टीच academics, so first of all we follow the as per NCERT and academic. Now, so may I have, what is the perfect square? What is the perfect square? Perfect square. Okay, now a natural number, what is the perfect square? A natural number, so a natural number is called a square or a perfect square number if it is a square of some natural numbers. Means a natural number is called the square number. A natural number is called the square number or perfect square number, or perfect square number if it is the square of some natural number. Okay, means a natural number is called the square number or perfect square number if it is a square of some natural number. Means what does it mean? It means if I will ask you 9 is the perfect square number, so you say yes. Why? Because we know that 9 is the square of 3. 9 is the square of 3, so 9 is known as perfect square number or square number. So square number or perfect square number if it is the square of some natural number. अगर वो नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, so we can say that it is the perfect square number. Now 25, yes, 25 is the perfect square number because it is the square of 5. Got it? 625 is the perfect square number. Yes, 625 is the perfect square number because 625 is the square of 25. It's clear? Now, some more number. 1024 is the perfect square number. It's a challenge. Okay? ये बड़ी बात हो गई थोड़ी सी. अब हम इसको कैसे करेंगे? Means the given number is the perfect square or not. अगर नंबर्स छोटे हैं, the numbers are smaller, then we can recognize it easily. हम उसको easily recognize कर सकते हैं और easily बता सकते हैं. Yes, it is the square of 9. It is the square of 20. It is the square of 25. Means जहां तक आपको learn होंगे, अगर आपको पता है 1024 is the square of, I know the number, but अगर आपको पता तो आप इसका भी बता सकते हैं. It is the perfect square because it is the square of that number. बट ये नंबर है, या फिर हो सकता है 81 किसका स्क्वायर है, हमें ये भी नहीं पता है. तो हाउ टू चेक एंड हाउ टू जस्टिफाई आंसर की, मतलब हम ये कैसे बताएं, हाउ टू टेल देम, हम इनको कैसे बताएं कि 1024 इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सो व्हाट इज द वे एंड हाउ टू चेक. सो लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट अंडर स्क्वायर. हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. How to check the given number is
the perfect square or not. Means how to check? 1024 is a larger number, so we have some trick. So how to apply the solution? The answer of this question is how to check the given number is a perfect square or not. So the method of prime factorization. Okay, we learn about the prime factorization in previous classes under the chapter factor and multiples from class 4th onwards or 3rd onwards. Okay, so let's do the prime factorization of 1024. So 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. Now 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Okay, we did the prime factorization. After the prime factorization, we can express the number 1024 is equals to, how many times 2 comes here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times. Okay, so you can write it. The factors of 102 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, now then we will start to make a pair of the factors. Okay, now I'm going to start. 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4th pair, and the 5th pair. First, second, third, fourth, and 5th pair. Means in the prime factorization of 1024, we got 5 pairs of 2. Means we got it is a perfect square now. Why? Because we get the pairs of each factors. ठीक है, हमें each factor मतलब हर factor का pair मिल गया, इसलिए 1024 एक perfect square हो जाएगा. अगर 1024 अगर pairs ना मिलते, फॉर एग्जाम्पल 1 2 ना होता, ठीक है, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज बोले 1 2 ज्यादा होता. ओके, तो मीन्स 1 2 3 and 4. 5th pair is incomplete. 5th pair क्या हो गया हमारा? इनकम्प्लीट हो गया. मीन्स उसमें तो सिंगल ही 2 आया. अगर पेयर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अगर पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, सो लेट्स वी चेक whose number 1024 is the square of whose number. So we write the 2 for this pair. So we can write 2's for each pair. So this pair is 2 2 and 2. 1 2 3 4 and 1 more 2 5. Okay, why 5? Because we have a 5 pairs. So we have to write each number for each pair. Okay, we have to write a number for each pair. मतलब हर नंबर के लिए हर जो गिवन नंबर होगा, जो पेयर होगा, उसके लिए हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे ना. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So 1024 is the square of 32. Hence 1024 is the perfect square. It's clear. And this is the way to check the given number is the perfect square or not. इसी कंसेप्ट पर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें इस चैप्टर से एक वर्ड प्रॉब्लम मिलती है, और वो होती है कि फाइंड द लीस्ट नंबर. वो लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए जिसको 1024 से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 512. ओके, लेट्स 512. 512 and the prime factorization of 512 is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, just count the prime factors here.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 times 2 comes. So now we have to start to make a pair. 1 2 3 4. 4 pairs are possible. Okay. If the question is asked, find the least number to divide 512 to make it a perfect square. वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करके बताइए जिससे 512 को हम डिवाइड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो मीन्स अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो उसमें 2 जो है ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है. मीन्स अगर हम इस 2 को एलिमिनेट कर दें या फिर इस 2 को हटा दें तो हमारा जो 512 है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. मीन्स हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को डिवाइड कर दें 2 से. तो ये हमारी इक्वेशन है. हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके. नाउ दिस 2 कट्स दिस 2. जब ये 2 कटा तो क्या हुआ, प्रॉपर परफेक्ट पेयर्स मिल गए हमें. मीन्स अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का. और हम ये 2 से डिवाइड करते हैं. इसको भी देख ले वो किसका बनेगा. 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 and 2 6 12. 256. It's clear. So this 256 is the perfect square after dividing the prime factorization, after dividing 512 by 2. बट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस पे भी ध्यान देंगे. आपसे पूछा गया था फाइंड द लीस्ट नंबर टू डिवाइड. वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको 512 को जिससे डिवाइड कर दें. ओके. 512 को डिवाइड करें उस छोटे से छोटे नंबर से तो हमारा 512 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो वो छोटा नंबर हमने कौन सा यूज किया है, 2. तो हम आंसर क्या रिप्लाई करेंगे इसका, या फिर हम आंसर क्या देंगे, 2. ओके ना. अब अगर एक क्वेश्चन आ जाता 512 फाइंड द लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई 512 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. मींस 512 को हम कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो मींस अब अगर किसी क्वेश्चन को वापस से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 का पेयर नहीं बना था. देन व्हाट वी विल डू, we will try to make a pair of 2. So this time I will multiply this single number 2 by 2 to make it a pair. Means ये जो सिंगल 2 था हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये एक पेयर बन जाए. और जब ये पेयर बन जाएगा तो हमारे टोटल 5 पेयर्स बन जाएंगे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका प्रॉपर पे पूरा हो जाएगा. एंड फिर हमें वो क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. तो वो लीस्ट नंबर कौन सा था जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2. ओके. सिमिलरली तो फिर आगे की बात यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं बिकॉज 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 15. फाइंड द लीस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 15 का करते हैं तो हो जाएगा 3 into 5. 3 5 15. मीन्स ना तो यहाँ पे 3 का प्राइम, ना तो यहाँ 3 का पेयर बना और ना ही यहाँ 5 का पेयर बना. बट क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द लीस्ट नंबर. ओके. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का भी पेयर बनाएंगे और 5 का भी पेयर बनाएंगे. हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि अगर 2 नंबर के पेयर्स नहीं बने तब क्या करेंगे सर, अगर 3 नंबर्स के पेयर नहीं बने तो क्या करेंगे सर. मतलब ये कि जितने पेयर्स इनकम्प्लीट होंगे हम उसको कंप्लीट करेंगे. या तो डिवाइड बोला जाएगा तो हम डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे और अगर मल्टीप्लाई के लिए बोला जाएगा तो हम मल्टीप्लाई करके कंप्लीट करेंगे. ओके ना. यहाँ पर हमने ये 3 इंक्लूड किया और ये 5 इंक्लूड किया. तो मैंने वो छोटे से छोटा नंबर कौन से इंक्लूड किया यहाँ पर ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. 3 5 15 मींस वो 15 ही था. ओके. एंड अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 5 हो जाता है. 2 to 5 द स्क्वायर ऑफ 15. इट्स गेटिंग क्लियर टू ऑल नाउ. सो लेट्स सी अनदर टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. मींस नाउअडेज ऐसी पैंडेमिक में जो हमारे ऑनलाइन स्कूल्स या क्लासेस चल रही हैं उसमें बेटा आजकल सिर्फ जो आपके असेसमेंट्स हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें सिर्फ आपसे मोस्टली एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो उस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली हमारी प्रॉपर्टीज से, हमारे बेसिक, हमारे कंसेप्ट मींस इस तरह की चीजों से ही बन पाते हैं. वहां पर टीचर आपसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि हम इसका प्रूविंग करिए या फिर
कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग ऑन स्क्रीन. ओके, सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मोस्टली प्रॉपर्टीज, इसलिए जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसको बहुत ही बेसिक से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए. कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बिल्कुल रिप्लाई करिए. ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज. ओके, properties of square numbers. Properties of square numbers. So what is the properties of square number? So first property, property 1. Okay, I will tell you around 11 properties, 10 to 11 properties under the squares. Okay, so you have to just focus on it. If all the properties not complete, अगर सारी properties इस वीडियो में complete नहीं हो पाती है तो मैं उसके लिए next वीडियो अपलोड करूंगा and उसको स्पेशली नेम भी दे दूंगा properties of square. Okay, so let's discuss the first property. The first property of the square is if the number ends with 2, 3, 7 or 8. If the number ends with 2, 3, 7 or 8, it's not a perfect square. It's not a perfect square. अभी परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे बोला जाए कि 21 इज द परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम 21 की बात करें यहाँ पर कि 21 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने तो एक बात यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी, आपने कहा कि सर आपने 1 तो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया है. ठीक है, मैंने क्या बताया, इफ द नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मींस 2 तो यूनिट प्लेस पे आए नहीं एंड 2 पे तो हो ही नहीं रहा. अब 21 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं बोलूंगा 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. Why? Because क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूं. हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्रॉपर पेयर्स यहाँ पे 20 मतलब प्राइम फैक्टर्स के बनेंगे नहीं, इसलिए 21 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं ना. तो बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं कि जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो वहां पर क्या चेक करते हैं, 2, 3, 7 और 8. मीन्स अगर आपको कोई नंबर ऐसा मिल रहा है 62 इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, सो नो नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, हम तुरंत क्लियर बता देंगे 62 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हाई?